السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ حکومت کی جانب سے گزشتہ روز پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں 30 سے زائد جو بلز تھے ان کو منظور کرایا گیا، اور سب سے زیادہ جو اس حوالے سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتخابی اصلاحات کی بات کی گئی اور جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کو انٹروڈیوس کرانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس حوالے سے اس کا بل بھی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں حکومت اور اس کے اتحادیوں نے منظور کرایا۔ اس پر اپوزیشن کا رد عمل بھی آ رہا ہے، حکومت اس کو اپنی فتح قرار دے رہی ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے عوام سے، اپوزیشن سے، ذرا جانیں گے کہ کیا رد عمل ہے، کیا کہتی ہے عوام، کیا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ممکن ہے، عوام اس پر اپنی کیا رائے رکھتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں حکومت کی جانب سے جو بل پاس کرائے گئے ہیں پارلیمان میں، اور اس حوالے سے ہم پبلک کا رد عمل بھی جان رہے ہیں۔ ہمیں نواز سانگی صاحب ہمارے سے وہ موجود ہیں، ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہمیں صاحب بتائیے گا، کل پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا، حکومت نے بل پاس کرائے، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ملا، الیکٹرانک مشینیں اب انٹروڈیوس کرانے کی بات کی جا رہی ہے، کیسے فیصلے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو اپوزیشن والے بہتر سمجھتے ہیں یا گورنمنٹ بہتر سمجھتی ہے۔ ہمیں تو چاہیے جو آج کل جو حالات ہیں، جو عمران خان نے جو وعدے کیے تھے، جو باہر کھڑے ہو کے کہے تھے، ابھی تک اس کا ایک پیسہ بھی عوام تک نہیں پہنچا۔ صورتحال یہ ہمیں یہ 10 مشینیں بنا لیں، غریب آدمی کو روٹی، کپڑا، گھی، جو اس کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ پوری کریں۔ گھی کا ریٹ دیکھیں کہاں پہنچ گیا۔ غریب آدمی کی یہ پوزیشن ہے کہ اس سال گرمیوں میں غریب آدمی نے پنکھا چلانے سے بھی پرہیز کیا، بجلی نہ، اس کے بعد بھی بل انتہا کیا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کب یہ چیزیں یہاں عوام تک پہنچیں گی۔ عمران خان نے باہر کھڑے ہو کے میں نے کہا یہ کہوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، ہمیں ابھی تک ایک پینی بھی تبدیلی محسوس نہیں کی۔ لیکن اب تبدیلی الیکشن سسٹم میں تو آ رہی ہے۔ سر جی وہ آ رہی ہے جب ہوگا، جو 5 سال جو انہوں نے وعدے جو کیے تھے کہ عمران خان نے، پوری ٹیم نے اب جو کیے تھے وعدے، اس کا کوئی چیز تو عوام کو نظر آئے۔ عوام یقین کریں، بعض بندے ایسے ہیں جو بیچارے روتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں خود، آپ بلیو کریں، میں نے خود لوگوں کے گھر جا کے دروازے ناک کر کے گاڑی میں بٹھا کر میں نے کہا ووٹ ڈالو، ووٹ ڈالو، یہ اسی اس میں کہ شاید ہمارے بھی کوئی نصیب، ہمارے بھی دن کوئی اچھے آ جائیں۔ نہیں جاگی نصیب؟ نہیں، آپ کے سامنے ہے، کیا ہے مجھے بتائیں۔ مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں، 1000 کے نوٹ کی ویلیو 100 کے برابر ہے۔ پیٹرول دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے، آٹا چینی کہاں پہنچ گیا۔ صبح چیز لیں 100 روپے کی، پیٹرول شام وہی چیز 120 روپے کی ہوئی پڑی ہے۔ یہ کہاں، یہ سارے جو عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ سوئی پڑی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں مشین سے کوئی غرض نہیں ہے۔ عام عوام کو روٹی کپڑا چاہیے، کپڑا چاہیے، جو بھٹو نے نعرہ لگایا تھا تو وہ چاہیے۔ تو عوام یہ روٹی کپڑا آج کر دے نا، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اگلا دور پھر عمران خان کا ہے۔ لیکن لگ رہا ہے کچھ ایسا ہوگا۔ سر دیکھیں لگ کے ابھی تو کچھ نہیں لگ رہا، جو صورتحال آپ کے سامنے کیا لگ رہا ہے؟ کوئی چیز ہے جو بتائیں، ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے کوئی چیز، ان کے کنٹرول میں، یہ صرف ایسے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔ عمران خان ایماندار آدمی ہے، میں حلفاً کہتا ہوں عمران خان ایمانداری کا ہمیں کیا فائدہ ہے بتائیں؟ آگے جو ان کے وزیر مرشد وہی ٹیم ہے۔ ایمانداری تو خیر بیسک چیز ہونی چاہیے نا، وہ تو بنیادی چیز ہے، اس میں کسی پہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے۔ عمران خان کھڑے ہو کے تقریر کرے جی میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، مگر مجھے بتائیں عوام کا کیا قصور ہے؟ ایک ریڑھی چلانے والا، ایک رکشہ چلانے والا، ایک عام جس کی 10-15 ہزار روپے مہینے کی آمدنی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ اس حوالے سے آپ نے گفتگو جانی ہے کس طرح سے پبلک رد عمل آ رہا ہے، ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، ہمارے سے 2 لوگ بھی موجود ہیں، ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس سارے صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وجن کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ بھائی حکومت نے کل پارلیمان میں اپنے بل پاس کرائے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا، نئی ووٹنگ مشین لے کے آ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں نئی ووٹنگ مشین صحیح رہے گی؟ بالکل صحیح رہے گی بھجن، بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے تو 2 نمبر کام ہوتے تھے، انگوٹھے ٹھپے پہ ٹھپے لگائی جاؤ، یہ ہوگا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، جو ہوگا سامنے آ جائے گا بھجن۔ ہم ہی شک میں ہیں مشین۔ مطمئن ہے سارے؟ الحمدللہ بالکل مطمئن ہے بھجن۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، ایسے دھاندلی ہوگی، جس طرح پہلے سسٹم بیٹھ گیا تھا تو مشکل ہوگی، اتنی جگہ پہ ڈیوائسز کیسے جائیں گی، تو یہ مسئلہ بھی تو ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری بات سنو،
पहले बहुत धांधली होती थी, जनवन बात, अब कोई धांधली नहीं होगी। पहले धांधली कैसे होती है? ठप्पे पे ठप्पे, बस आधा घंटा घंटा 5 बजे पोलिंग स्टेशन बंद करते हैं, उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे में अपना काम डाला, चल और रिजल्ट चेंज हो जाता है। रिजल्ट चेंज होता है, बिल्कुल होता है। इधर अब देखो 2018 का इलेक्शन हुआ, शाहमूद कुरैशी का 8:30 बजे रिजल्ट आ गया है, सबसे पहले शाहमूद कुरैशी का आया, अहमद डोगर का आया, फलाना जीत गया, फलाना ये सब भाई धांधली हुई है पिछले वोटों में। अब जो होगा ये जानवन काम होगा। ये भी तो हुकूमत लेके आ रही है, अपोजिशन कह रही है कि ये भी धांधली के जरिए। हुकूमत ने सिर्फ जो महंगाई है ना, महंगाई इन्होंने हद कर दी, हद। सुन रहे भजन, बहुत महंगाई कर दी है। हम कहते हैं इमरान खान साहब जान छोड़ दो हमारी, हकीकत बात है भजन। 360 रुपये किलो घी कर दिया इसने, आगे भी होगी महंगाई। लेकिन ये सिस्टम ठीक है आप कह रहे हैं? सिस्टम भी ठीक है, लेकिन जो भी है ना, जो इन्होंने कहना है ना वही होना है, हमारी तुम्हारी नहीं मानी जानी। पहले वाला सिस्टम भी अच्छा था, जो ये सिस्टम है ना, जो ये कहेंगे ना वही होना है। बात को समझ रहे हो भजन? आप क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं ये नहीं होने चाहिए, नहीं होना चाहिए। गलत है। आपने पहले वोट कास्ट किया था तो आप कहते हैं वो ठीक? वोट इमरान खान को दिया है, ये पहला कास्ट किया है। अच्छा, वो दिया था आपने। अब नहीं देना हमने, अब नसीहत आ गई है, हर बंदा भूखा ही। क्या हुआ? बस नसीहत आ गई, हर बंदा मांग रहा है। जो लड़कियां देखो इसके घर में नौजवान लड़कियां मांग रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे नौबत देखी नहीं है इसकी हुकूमत में। इसकी हुकूमत में देखे हैं, जो आ रहा है मांग रहा है। होटल है ना, हालात ख़राब होते जा रहे हालात इतने ख़राब हैं, नौजवान लड़कियां मांग रहे हैं। हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कल इस हवाले से जो बिल पास हुए हैं, क्या समझते हैं, बेहतरी आएगी? बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी जी। इससे ये है कि नहीं, ये देखें पहले ये सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सबसे जो बेस है ना, ये समझिए बुनियाद रख दी है। और इसमें देखें हमारा हर पाकिस्तानी, मुल्की व गैर मुल्की, सब इन्वॉल्व होंगे और ये फेयर तरीका है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि ये गलत है। अपोजिशन का तो या दूसरी भी जमातें जो होती हैं जी, उनका तो काम होता है शोर मचाना, तो ये उनका हक है, वो शोर मचाते रहें, लेकिन जो बात फेयर है वो ठीक है। क्या समझते हैं आम आदमी को समझ आएगा कि उसने कहाँ बटन दबाना है, कहाँ पे वोट कास्ट करना है, किस तरह उसको पता चलेगा कि मैंने वोट कास्ट हो गया? क्या ये साथ समझ आ जाएगा? आप ये बताएं जी, पाकिस्तानी कौम को टच मोबाइल का पता लग जाता है जी? आप अनपढ़ जाहिल को दे दें, वो किस तरह चला रहा होता है जी? इस तरह जी हर चीज़ जब आती है तो हर तरीका आ ही जाता है, तो ये कोई बड़ी इशू नहीं है, या खुद ब खुद आएगा। तो आप समझते हैं ये सारा कुछ सही हो रहा है? बिल्कुल ठीक है जी, इसमें कौन सी बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल हर चीज़ क्लियर है। और ये देखें ना जी, पहले होता था जी हर बंदा अपनी मर्ज़ी वो करता था, मसलन वोट हमने डाला है, वो भी तो होता था जी, फिर बाद में संदूकड़ियाँ खुल के उसमें हर कुछ हो जाता था। लेकिन इसमें ये तो नहीं होगा ना, ईवीएम से बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। आप कहें जो संदूक वाला सिस्टम है उसमें स्याही डाल सकती है, कुछ खराबी हो सकती है? उसमें तो आप जो चाहे कर सकते हैं ना जी, उसमें तो आप देखें ना जी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप पानी डाल दें वोट सारे ख़राब, कुछ कर दें। लेकिन ये तो सर फेयर तरीका है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये तरीका है। और भी हम लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह की मेहरबानी है। हुकूमत ने कल बिल पास कराया है, कहा है कि आप जो वोट कास्ट करेंगे मशीन के ज़रिए करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए। क्या ये सिस्टम ठीक है या गलत है? सिस्टम तो ठीक है, मशीन वाले जो है वो ठीक है, ताकि 2 नंबरी ना हो सके, जो भी काम है सही होना चाहिए। अपोजिशन कह रही है कि इसमें 2 नंबरी हो सकती है, अपोजिशन के इस पे बातें आ रही हैं, तो आप कहते हैं वो बिलाजवाज़ हैं अपोजिशन की बातें? देखो ये भी ये 2 नंबरी हो सकती है, तो हम उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। जो बैठे हैं वो जैसे भी करें तो वो कर सकते हैं। जो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं बैरून मुल्क में, सऊदी अरब में, मुत्तहिदा अरब अमीरात में, कतर में, कितने शहर में है रहने वाले जो लोग हैं, उनको वोट का हक मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, दें वो। ये कह रहे हैं कि उनको भी वोट का हक मिलना चाहिए। इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं कि वो साइज सूरत के बारे में कहते हैं। अगर जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं? हुकूमत बहुत चंगे काम करें दी पई है, एक मुल्क अखीर अन करीब ख़त्म थी वैसी। इतने मुश्किल हालात हो गए? हाँ इतने मुश्किल, रोटी खाने मुश्किल थी गए, कारोबारी वो अज रोंदा पाए, तिजारती अज रोंदा पाए, हर बंदा रोंदा ही रोंदा पाए। जय कुड़े का हुकूमत कह रही है कि हम तो कामयाब। वो कामयाब वो अपने आखा नाल कामयाब है ना, कुर्सी ते बाय के आते बैठे ना कामयाब है, इतना कर बाय के आवाम में टुर के देखे ना, अगले साल इन्हें को वोट देता जो है कोई। उन्होंने वोटिंग का सिस्टम ही तब्दील कर दिया है, मशीनें लाएंगे। हाँ मशीन भावे कारण जरा कुछ करना, खुदा तो डाटा आए था, खुदा तो जरा कुछ करे सी कर के नहीं सी ना। तो क्या समझते हैं हुकूमत ने कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया? 1 रुपया नहीं, हथू जरा कमरा तोड़ के रख दी तेने, रोड पिंडन किते दुनिया पिंडन किते आ गई है, रोड दे उत्ते दुनिया पिंडी वधी है। और ये आप क्या कहेंगे हुकूमत के बारे में? हुकूमत ठीक नहीं है, सही नहीं है। महंगाई बहुत हो गई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। अब हुकूमत कह रही है कि जो अब अगला इलेक्शन होगा ना, अब वो पर्ची वाला नहीं होगा, अब वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होंगी, वो बटन दबाएंगे, वोट कास्ट होगा। समझ आएगी इस मशीन की या
पहले वाला ठीक था? हमारा तो ये इरादा है, हम किसी को वोट नहीं देंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है वोट देने का, वोट ज़ाया होता है। आपका एतबार ही उठ गया है। बिल्कुल बिल्कुल इतबार नहीं है, किसी पर इतबार नहीं है। क्या अपना कमाना है, अपना गुजारा करना है। क्या मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से? हम कोई मुतालबा भी नहीं करेंगे, हुकूमत कुछ कर ही नहीं सकती। हुकूमत कुछ कर ही नहीं सकती। हम और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। वोट कास्ट किया था आपने? वोट कास्ट किया था, लेकिन जोन सा है ना, इस चोर को नहीं दिया था हमने। इसने तो जोन सा है ना हमें रुला दिया है। हम तो खाने के लिए भी जोन सा है ना आवाज़ार खड़े हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हों के लिए रोटी भी बहुत औखी पूरी होती है। अब हुकूमत नया सिस्टम लेके आ रही है वोटिंग का। अब ना जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होंगी, डब्बे वाला सिस्टम ख़त्म होगा, पर्ची नहीं होगी। तो कहते हैं ये सिस्टम ठीक है या पहले वाला सिस्टम? सिस्टम गलत है जी। ये क्या खराबी है वो इसमें? वाला सही है। इसमें जोन सा है ना सारी धांधली है पड़ी। इसमें धांधली ज़्यादा होगी। जी हाँ जी, आप कहते हैं पहले वाला सिस्टम ठीक था? वो ठीक था। पहले वाला सिस्टम ठीक था, इनका जी कहना है। और इस हवाले से हम मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहती है, अवाम क्या कहती है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का जी। कैसे चल रहे हैं हालात आजकल? हालात बहुत रेट जा रहे हैं सर, महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं हो रहा। ठीक है। बस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है? नहीं, मुतमिन कहाँ है, मतलब है इसने जो कहा था उस पर मुतालबे पूरा नहीं उतरा। ये हर चीज़ हवा पे रूज पे। अब वो कह रहे हैं कि वोटिंग का सिस्टम हम नया लेके आ रहे हैं, नए वोट मशीनों के जरिए कराएंगे। वो वोट मशीन के कराएंगे, लेकिन हमने क्या करना है, मशीन से क्या लेना है हमने? हमने धोखा करने नहीं, बेईमानी के लिए है। बेईमानी हो या ना हो। मशीन जो है ना वो बेईमानी के लिए है। वो तो कह रहे हैं फेयर सिस्टम होगा। नहीं, फेयर सिस्टम नहीं है। फेयर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आवाम का है। हाँ, पर्ची वाला सिस्टम ठीक था आपके? बिल्कुल सही है पर्ची वाला सिस्टम। डब्बे उठा के ले जाते हैं, धांधली हो जाती है, अब नहीं होगी। पहले वाला सिस्टम ठीक था, अब पहले वाला सिस्टम सही है। पहले वाला सिस्टम ठीक है। आवाम के जी कहने हैं। हम मजीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह पब्लिक का रद्दअमल जान रहे हैं कि लोग इस हवाले से हक में भी बात करें और ये भी कह रहे हैं कि इस सिस्टम से धांधली को भी मदद मिल सकती है। लेकिन जो पहले साबका सिस्टम रहा है उस पर भी लोगों के इतराज़ात सामने आने और भी हमारे से लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। क्या ये सिस्टम पाकिस्तानी आवाम को कबूल होगा या ये सिस्टम जो है आने वाले दिनों में कामयाब हो सकता है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। कल पार्लियामान में हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से बिल पास कराया गया और ये कहा गया कि अब जो वोटिंग सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए होगा। उसकी मंजूरी भी दिलवाई गई पार्लियामान से। क्या समझते हैं ये सिस्टम सही है? क्या इसके नतीजे सही आएंगे या फिर जो अपोजिशन कह रही है कि इससे धांधली होगी, क्या कहेंगे इस पर? वोटिंग मशीन्स जो इन्होंने मुतारिफ़ करवाई है, जिससे ओवरसीज़ को वोट देने का हक मिला है, ये खुशाइंद बात है। लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने धांधली का एक नया तरीका मुतारिफ़ करवा दिया गया है। एक जानब आप कह रहे हैं खुशाइंद बात है, दूसरी जानब कह रहे हैं धांधली का तरीका। बात दुरुस्त कौन सी है? देखें, मैं आपको बताता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ आपको बात। आप ये देखें कि जो लोग पाकिस्तान में 1 साल बाद 2 साल बाद आते हैं, जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहकर डॉलर में, यूरो में, रियाल में, दिरहम में शॉपिंग करते हैं, उनको क्या पता यहाँ पे गरीब आवाम के साथ क्या हो रहा है? उनको क्या पता यहाँ पे गरीब आवाम को कितना महंगा पेट्रोल मिल रहा है? उनको क्या पता है यहाँ पर गरीब आवाम आटे, चीनी, दाल के लिए कैसे मर रहे हैं? लोग अपने बच्चों को फ़रोख्त कर रहे हैं अपने पेट को पालने के लिए। और यहाँ पर पहले किसी और तरीके से धांधली की गई, RTS सिस्टम को बिठाया गया। अब इन्होंने वोटिंग मशीन मुतारिफ़ करवा दी है। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए ये मशीन मुतारिफ़ करवाई है, जिससे पहले मौजूद है उसमें भी तो इतराज़ात आते हैं। हम देखते हैं डब्बे उठा के लोग भाग रहे होते हैं, पोलिंग स्टेशन पे धावे बोले जा रहे होते हैं। तो ये भी तो वाक़यात हुए यहाँ पे। देखें, वो डब्बे कौन चोरी करवाता है, वो डब्बे कौन उठवाता है, उन डब्बों में जो वोट डलते हैं लेकिन निकलते कुछ और हैं, वो कौन वोट निकलवाते हैं, ये सारे गरीब आवाम जानते हैं। ये अब आवाम में ढकी छुपी बात नहीं रही। सिस्टम कौन सा हो, डब्बों में भी इतराज़ात है, मशीन पे भी इतराज़ात है, फिर इलेक्शन किस तरह फेयर हो सकता है? इस मुल्क में
शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। इस मुल्क में आवाम को हक़ हुक्मरानी होना चाहिए। इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए। जमहूरियत उसी सूरत में आएगी जब इदारे अपनी हदूद में रहेंगे और जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ होंगे। इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। हम और भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भैया। वोट कास्ट किया था आपने? जी किया था। अब हुकूमत कह रही है, पार्लियामान में कल बिल पास हुआ है कि वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बटन दबाएंगे वोट कास्ट होगा। ये सिस्टम ठीक है या पहले वाला ठीक था? ये गलत है। क्या खराबी होगी इसमें? इस सिस्टम को कोई भी हैक कर सकता है। इस सिस्टम को एक तो कोई भी हैक कर सकता है, दूसरा सर ये है कि उन्होंने ये जो तरीक़ेकार निकाला है ये बिल्कुल गलत है। आप मुतमिन नहीं है इससे? हाँ, और दूसरी बात ये जो फवाद चौधरी साहब हैं, हम इनसे मुतमईन नहीं हैं। ठीक है। ये ऐसे जवान है ना, उन्होंने क्या करना है? देखे ना, वो ऐसे अंदाज से झूठ बोलते हैं ना कि बस देखने वाला देखता ही रह जाए। ठीक है। अभी तक जो वादे उन्होंने किए उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया। जो वादे हुए उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ और सिस्टम पर इनका ये कहना है कि बिलीव नहीं है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सबका। जो हुकूमत की जानिब से कल बिल पास कराए गए, क्या समझते हैं? हुकूमत तो उसे कामयाबी करार दे रही है, आम आवाम की और फतह करार दे रही है कि अब इलेक्शन फेयर होंगे। क्या समझते हैं ये सिस्टम फेयर होगा या ये भी खराबी की तरफ जाएगा? पहले तो भाईजान मैं ये पूछना चाहता हूँ इस हुकूमत से कि अब तक फेयर इलेक्शन कहाँ हुआ है जब से ये हुकूमत आके बैठी है। जहाँ देखें धांधली निकली है, 10 का इलेक्शन उठा के। हम धांधली करते तो हम ज़िमनी इलेक्शन हारते, हम तो हार जाते हैं, मतलब हम फेयर इलेक्शन कराते हैं। हुकूमत तो ये जवाब पेश करती है। सर डस्का वाले इलेक्शन देखें आपके सामने है, डस्का वाले मामला रिजल्ट आपके सामने है, बाकायदा आपने कंटोनमेंट बोर्ड को उठा के देख लें, वो आपके सामने सारे मामला। ज़िमनी इलेक्शन है वो आप उठा के देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग विन करती आई उसमें। दरअसल ये जो कल बिल पास हुआ है ये सरसल धांधली है और ये धांधली समझो एक नया उन्होंने प्रोपोगंडा छोड़ा है कि इससे चाहे हुकूमत को हम थोड़ा बचाएं और टाइम अपना एक्सटेंड करें, लेके जाएं और मुद्दत पूरी करें, ताकि इन असल मसला है गरीब आवाम को रिलीफ देना। जो गरीब आवाम के पास आज घी रोटी खाना पीना ये सब उसकी पहुंच से दूर हो चुका है। आप गरीब आवाम से पूछना, आपके सामने आपको तो बदुआएं देती हैं, कहाँ जाए गरीब आवाम? ये दरअसल सरासर गलत है। ये जो कल कौमी असम्बली में बिल पास हुआ है इलेक्ट्रिक वोटिंग का, ये बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं कि इससे सिस्टम बेहतर नहीं होगा, खराबी की तरफ जाएगा? ये बिल्कुल मजीद खराबी की तरफ जाएगा और हालात मजीद ख़राब होंगे। हुकूमत कहती है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो धांधली करते हैं, वो वोट चोरी करते हैं, डब्बे उठा के लिए जाते हैं पोलिंग स्टेशन पर, तो वो चाहते हैं कि पुराना सिस्टम रहे। वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि नया सिस्टम हो, डब्बों वाला मामला ना हो, डिवाइस के ज़रिए रिजल्ट आ जाए। तो इसमें ख़राबी क्या है? सर ये तो सबको पता है कि डब्बे कहाँ से उठते हैं और कहाँ जाते हैं। जब तक ये हमारे हुक्मरान और जब तक हमारी ये जो इदारे हैं ये मजबूत नहीं होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जब वोटिंग कास्ट की जाती है उसका डब्बा सिक्योर होता है, ये तो ज़ेरे निगरानी लेके जाया जाता है। जब तक वो इदारे मजबूत नहीं होंगे तो मामला कैसे सॉल्व होंगे? तो आप ये कहते हैं ये सिस्टम सही नहीं है? बिल्कुल सिस्टम सही नहीं। नाज़रीन आपने जाना इस हवाले से जो आवाम की शिकूक व शबात भी सामने आ रहे हैं, अपोजिशन के हवाले से भी हमने बात की, उसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि सिस्टम को अगर बेहतर करना है तो इस हवाले से एतमाद भी लाना होगा। अभी तक लोगों में इस सिस्टम पर एतमाद सामने नज़र नहीं आ रहा। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। साहब बताइएगा, वोटिंग मशीन के हवाले से अब इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, पार्लियामान ने पास किया, आपने इलेक्शन कवर किए, धांधली की हर बार शिकायतें आती हैं, क्या समझते हैं नया सिस्टम सही रहेगा या इस पर भी जो अपोजिशन के खदशात हैं वो सही खदशात हैं? देखें, गवर्नमेंट को चाहिए कि अपोजिशन को इत्माद ले, वो भी अवाम के नुमाइंदे हैं। अपोजिशन को इत्माद में लेकर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाए। दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वोटिंग मशीन वो मुस्तरद हो चुकी है, उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं है। अभी देखें पिछले अमेरिका के इलेक्शन में भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जी रूस ने ये कर दिया, रूस ने वो कर दिया। तो गवर्नमेंट को ऐसे एकतरफ़ा फैसले नहीं करने चाहिए। कल में जो पार्लियामेंट में हुआ अफसोसनाक है, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है अपोजिशन। अपोजिशन भी आवाम को रिप्रेजेंट करती है, अवामी नुमाइंदे हैं। हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो साथ लेकर चलें और अगर नहीं होता तो उस पर फिर जो है
वो वोटिंग में। अब तो बिल पास करा लिया हुकूमत ने, अब तो कहा कि हमने जो अक्सरियत हमें चाहिए थी हमने बिल मंजूर करा लिया, अपोजिशन ने साथ नहीं दिया, इत्तेहादियों की मदद से करा लिया, अब हम इसी सिस्टम के ज़रिए जाएंगे। क्या समझती हैं, एक पोलिंग स्टेशन हम देखते हैं कि हर हल्के में 300 प्लस पोलिंग स्टेशन होते हैं, पूरे मुल्क की बात करें तो लाखों पोलिंग स्टेशन बनते हैं, क्या इतने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दी जा सकती हैं? क्या लोगों को बताया जा सकता है कि इस सिस्टम के ज़रिए आप वोट कास्ट कर सकते हैं? तो क्या ये ग्राउंड पर ये काम हो सकता है? देखिए जो 2018 का इलेक्शन था आरटीएस बैठ गया, इसी तरह आइंदा इलेक्शन में भी यही होने का खदशा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो हैं वोटिंग मशीनें ये भी बैठ सकती हैं और अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट जो लोग हासिल करना चाहते हैं वो कर लेंगे। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि तमाम पार्लियामेंट को एतमाद मिले, ख़ास तौर पर अपोजिशन के जो तहफ़्ज़ात हैं उन्हें दूर करे और मिल बैठ कर जो है मुतफ़िका तौर पर इस पर लायामल अख्तियार किया जाए। का तौर पर लायामल इख्तियार कीजिए। खास से बताइएगा ये जो सारी सूरत है, कल अपने असम्बली का माहौल भी देखा, सारा कुछ चल रहा है, हुकूमत कामयाबी कह रही है, अपोजिशन कह रही है अदालत में जाएंगे, क्या समझते हैं ये जो नया सिस्टम है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हक देना वोट का, और सेकंड वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या नए इलेक्शन शफाफ होंगे इस पर? देखिए जी, आज तक तो इलेक्शनों पे सवालात उठते आए हैं। जो वोटिंग मशीन है ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमारे मुल्क में खानगी नहीं है। जब एजुकेशन पे हमारी तवज्जो नहीं है, एजुकेशन हम कौम को दे नहीं रहे, तो हम वोटिंग मशीन की तरफ जा रहे हैं, तो हम किस तरीके जा रहे हैं? हमारे देही इलाकों में वहाँ चले जाए, वहाँ भी शऊर ही नहीं है। अब वहाँ वोट के लिए भी उनको समझाना पड़ता है कि वोट किस तरह कास्ट करना है। देखो ना, जहाँ स्टैंप लगाने के लिए आज भी लोगों को समझाना पड़ता है कि इस तरीके से स्टैंप लगाएं, वहाँ पे मशीन को समझाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें तो गवर्नमेंट को चाहिए था पहले इसकी आगाही मुहिम चलाते, लोगों को बताते कि क्या सिस्टम क्या है। आगे इलेक्शन सर पे खड़ा है, इलेक्शन तो अब दूर ही नहीं है, ठीक है ना। इसको समझाने के लिए हमें कम से कम 8 साल 10 साल चाहिए, तो साल 1.5 साल अब इलेक्शन में रह गया है वोटिंग मशीन पे। ये तो सीधी सीधी साफ नज़र आ रहा है कि इसमें धांधली होने का चांसेस हैं। इसमें तो अभी तक हमें हमें अब हम लोग खड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर हमें वोटिंग मशीन का पता ही नहीं है कि वो वोट कास्ट कैसे करना है। जब हमें मालूम नहीं होगा कि हम लोगों को क्या समझाएंगे कि वोट कास्ट कैसे करना है। तो माशरे के मेन लोग हैं उनको नहीं पता, तो आम पब्लिक तक तो शऊर पहुंचाने तक काफ़ी टाइम चाहिए। साल 1.5 साल में मुमकिन नहीं है कि हर किसी को हर पोलिंग स्टेशन पे बता दिया जाए कि इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल का क्या है और सारा कुछ। देखो ना, बिल्कुल ये तो पहले सबसे पहली बात है। जब तक लोगों को बताएंगे नहीं, चले नौजवान को समझाना आसान हो जाएगा, जो बुज़ुर्ग हैं, जो एजिड लोग हैं, उनको समझाना, जिनको बैलेट पेपर नज़र नहीं आता था, उनको ये थंब सिस्टम या ये मशीन सिस्टम ये समझाना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। इसका मकसद है कि आने वाले इलेक्शन में अगर ये मशीन से वो वोटिंग कराते हैं तो टर्नआउट बहुत कम हो जाएगा। टर्नआउट बहुत कम हो जाएगा, इस हवाले से खदशात भी आ रहे हैं और आपने रद्द-ए-अमल भी जाना है। हम अपोजिशन का रद्द-ए-अमल भी जानेंगे कि वो सारी सूरत हाल पे क्या कहती है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने पब्लिक का रद्द-ए-अमल जाना कि जो हुकूमत की जानिब से कल पार्लियामान में इत्तेहादी जमातों और हुकूमत ने जो बिल पास कराए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ दिया गया, उसके साथ साथ जो हमारा इलेक्शन का जो सिस्टम है, जिस तरीके से वोट कास्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन अब इंट्रोड्यूस कराने के हवाले से जो बिल पास हुआ, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के साबिक MP हैं बाबू नफीस अहमद अंसारी साहब। ज़रा उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, पीपल पार्टी क्या करने जा रही है, क्या जो बिल पास हुए हैं उस पर अपोजिशन का मज़ीद लाएअमल क्या होगा। अंसारी साहब, जिस तरह कल बिलावल साहब ने भी खिताब किया और ये कहा कि अभी से हुकूमत धांधली कराना चाहती है, हुकूमत ये कहती है कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने खिताब किया, उसने कहा कि 71 से लेकर जो भी इलेक्शन हुए सब पर एतराज़ हुए, 70 से लेकर, तो अब हम नया सिस्टम ला रहे हैं, इस पर एतराज़ नहीं हुआ, तो इसको अपोजिशन कबूल क्यों नहीं कर रही, वजह क्या है? मेन वजह मैं वही शाह महमूद कुरैशी की असम्बली में तकरीर से शुरू करता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि आज का एक तारीख़ी दिन है पाकिस्तान के लिए। मैं कहता हूँ कि तारीख़ी दिन है। उसकी वजह ये है कि जहाँ अदारों की इन्वॉल्वमेंट हो और उनसे राय ना ली जाए, उनको बुलडोज़ किया जाए कि ये जमहूरियत की नफ़ी है। हुकूमत कहती है कि अपोजिशन हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। हमने तो बार बार पेशकश की कि आएँ बैठें, इंतखाबी जो इस्लाहात हैं उस पर बात करें, लेकिन अपोजिशन का बिहेवियर अजीब रहा, तो हुकूमत तो ये जवाब पेश करती नज़र आती है।
میں اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں. آپ بتائیں کہ پچھلی 3 سال سے زیادہ اس حکومت کو ہو گئے ہیں, بتائیں کس معاملے میں انہوں نے بیٹھ کے کوئی بات کرنے کی کوشش کی ہے. کل بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی. پچھلی دفعہ جب انہوں نے اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جوائنٹ سیشن, تو اس میں بھی ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ہمارے اتحادی جو ہے علیحدہ ہو جائیں گے. پھر انہوں نے اسپیکر کی طرف سے ایک ایسا ہی لیم ایکسکیوز کر کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن سے بات کریں, اس کا جواب شہباز شریف صاحب نے دیا, بیتی اپوزیشن لیڈر. اور خوشی اس بات کی کہ اسمبلی میں تمام اپوزیشن پارٹیز جو تھی وہ اکٹھی تھی اور بڑا اچھا سسٹم تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم چلیں گے, لیکن اس کے بعد ہی انہوں نے اچانک, یعنی اگر کل بل پاس ہوا ہے بدھ کو, تو انہوں نے منڈے کو کہہ دیا کہ ہم بدھ کو جوائنٹ سیشن کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا اور بلڈوز کر کے. حکومت اس کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے. وہ یہ کہہ دے کہ ہم نے ایک بار پھر اپوزیشن اتحاد کچھ کس دی, ہمارے اتحادیوں نے ہمارا ساتھ دیا, اب ہم نے بل پاس کرا لیا, جی ہماری کامیابی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تاریخی دن نہیں ہے, تاریخی دن ہے. کیا سمجھتے ہیں جو اگلا الیکشن ہوگا اس میں اگر یہ سسٹم متعارف کرایا جاتا ہے اور لایا جاتا ہے تو کیا مسئلہ کہاں پہ ہوگا, پرابلم کہاں پہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا اس انتخابی اصلاحات کا, اس کا تعلق آئینی اداروں سے ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے, پارلیمنٹ ایک آئینی ادارہ ہے, پرائم منسٹر آئینی ہے. یہ جو آئینی ادارے ہیں نا, ایسے جو جس سے فیوچر وابستہ ہو, اس کو ہمیشہ جتنے بھی اسمبلی کے کوئی بھی بل آئے ہیں, ایک تو اسمبلی میں ڈائریکٹ پیش ہوئے ہیں, آرڈیننس کے تھرو نہیں آئے, اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ اس میں کنسنسس ڈکلیئر ہوا ہے. 2011-17 کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو بل اصلاحات کا پیش کیا تھا الیکشن کے متعلق, ریفارمز کا, جس کے تحت 2018 کے الیکشن ہوئے. کمیٹیاں بنی تھی اپوزیشن اور الیکشن کمیشن کا جو تعین ہونا تھا, اس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, 2017 کی بات ہے جس میں بل پاس ہوا, جس کے 2018 کے الیکشن ہوئے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں, انہوں نے کنسنسس سے سارے پارلیمنٹ میں پیش کیا اور بڑی خوش اسلوبی سے مسئلہ ہوا. یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, اب ان کو قانون تو یہی کہتا ہے, بلکہ آئینی ایک شکم ہے کہ جہاں آئینی اداروں کی انوالومنٹ ہو تو ان کے پاس بل کی ڈرافٹ بھیجا جاتا ہے. ان کا ڈرافٹ گیا الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن نے 34 آبجیکشنز ریز کیے, اور اس کے تحت انہوں نے کہا کہ کس طرح ممکن ہے, پہلے تو فنڈنگ پرابلم ہے, وہ کس طرح آپ حل کریں گے, یہ تو اربوں کے اخراجات چاہیے اس میں, اور اس کے ساتھ آپ کو ایک ٹیکنیکل عملہ چاہیے جس کے لیے. آپ خود بھی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور آپ ایم پی اے بھی بنے اور شروع سے آپ پولیٹکس میں کافی ایکٹیو ہیں. کیا سمجھتے ہیں جو ہمارا الیکشن کا سسٹم ہے, جس دن ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈبے ٹائم پہ نہیں پہنچے, بیلٹ ٹائم پہ نہیں پہنچے, ووٹنگ سسٹم رک گیا, کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے ٹائم یہ جو الیکٹرانک مشینیں ہیں ہر پولنگ اسٹیشن پر صحیح طرح اویلیبل ہو سکتی ہیں؟ کیا ان کو فعال رکھا جا سکتا ہے؟ جو ہمارے لوگ ہیں جن کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے انگوٹھا کہاں پہ لگانا ہے, بیلٹ کہاں سے لینا ہے, تو کیا وہ ان ڈیوائسز کو استعمال کر سکیں گے؟ امپاسبل. اس کے لیے کم از کم 1 سال کی ٹریننگ چاہیے, اور یہ تو آپ کے الیکشن جو ہے 15-16 مہینے کے بعد ڈیو ہیں, اور 15-16 مہینے میں تو آپ کوئی بھی چیز پوری نہیں کر سکیں گے, اس کی ایک بھی. اس میں ابھی الیکشن کمیشن نے بھی اس کی کہا ہے کہ اس کی جو ہے یعنی سٹیپس جو ہیں 14 ہیں, 14 سٹیپس جو ہیں وہ آگے چلیں گے, وہ اس کے بغیر کیسے ہے. دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے, اس میں جو مین ہے الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے, آپ کا جو نادرا کا محکمہ ہے وہ ایک قانونی ادارہ ہے. آئینی ادارہ انڈر دی شیڈو آف آئین کام کرتا ہے, جو ایک ہمارا تقدس والا ایک کتابچہ ہے جس کے تحت سب باقی ادارے کام کرتے ہیں. الیکشن کمیشن میں اسی آرڈیننس میں جس کو لا بنایا گیا ہے, اور جو کل انہوں نے بلڈوز کیا ہے, ایک آدمی کو رائے نہ لے کے ایک اپنے زوم ہوا کرتے ہیں, بڑے بڑے آئے ہیں, ماشاء اللہ ریگولیشنز بھی یہاں چلتے رہے ہیں, سنگل آدمی نے بات کی ہے, ماشاء اللہ جو ہیں آرڈیننس بھی ایسا ہے, لیکن ان کی سینٹٹی نہیں ہوتی بھی تھے, کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے ان کی لوگوں کی جو ہے وہ رائے کیا نہیں ہوتی. بلاول گزارش کروں گا, الیکشن کمیشن کو انڈر کر دیا گیا ناظرہ کے. لسٹ کون دے گا؟ ناظرہ. یہ قانونی ادارہ ہے جس میں تمام کوتاہیاں سرزد ہو سکتی ہیں, اور اس کے متعلق اس کی مرضی جو فہرست بنا کے ان کو فیڈ کرے گا وہ آگے چلے گی. اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ اس میں جو بھی
डालेंगे रिक्वायरमेंट, उसी रिक्वायरमेंट से बाहर आएंगे। आप ये कहेंगे इस पे जो ऑब्जेक्शन है उनको भी दूर नहीं किया गया, उससे पहले ये बिल मंजूर करा लिया गया। बिलावल भुट्टो कल जब उन्होंने खिताब किया उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, ये तो अभी से धांधली का आगाज़ हो गया है। तो क्या समझते हैं कि इस तरीक़ाकार से पार्टी इलेक्शन कबूल करेंगी या हमेशा की तरह वही एतराज़ है कि धांधली हुई, सिलेक्शन हुई और इस तरह के जो एतराज़ात हमेशा लगते हैं? मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, 79 में इलेक्शन में इन रहा हूँ, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर से लेके मैंने सेनेट तक का इलेक्शन लड़ा है। ये एक शतरंज की गेम है, जो सोच समझ के खेलना चाहिए। 1979 का पहले इलेक्शन थे, उसमें हमारे जो बॉक्स रखे थे इलेक्टोरल के, वो उसमें कलरिंग होती थी कि उस डब्बे में डाला जाए। उस वक्त इतनी डेवलप नहीं थी, फिर मोर लगने लगी और आपने देखा कि मोर उल्टी भी लगती है। जिस मुल्क की आबादी का निफ्स से ज़्यादा हिस्सा अनपढ़ हो, मैं तो ये कहूँगा है, और उसमें फिर उनको समझाने के लिए भी वक्त लगे। हम इलेक्शन में, हर इलेक्शन में, मेरे वाला सेनेटर भी रहे हैं, एमएनए भी रहे हैं, उन्होंने भी इलेक्शन लड़े हैं, और उसको समझाने के लिए वक्त चाहिए, और उसमें ये चीज़ें जो हैं ये ग्रेजुअली तो आगे आ सकती हैं। इस टाइम मुश्किल है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है हजूर, नामुमकिन है। ये अपने आप को देखें क्या आते हैं इसके मामलात। सेकंड, हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट हक दे के अपनी कामयाबी की बात कर रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो काफ़ी खुश नज़र है। अपोजिशन जमातें इतराज़ कर रही हैं कि ये वक्त नहीं था या उनका तरीक़ाकार चेंज होना चाहिए, जिससे बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की तरह उन्हें हक मिलना चाहिए। तो इसमें अगर वो अपना राय जो फ़र्ज़ किया शहरी है, मियाँ वाली का है, मुल्तान का है, वो सऊदी अरेबिया में, अरब अमारात में मेहनत मजदूरी कर रहा है, वहाँ से पैसे भेज रहा है, अगर उसे हक दिया जाता है वोट कास्ट करने का, इसमें गलत क्या है? मसला ये है कि अगर इन्होंने इसी तरह वोट का राइट दिया तो ये होगा ओपन वोट होगा, सीक्रेट वोट नहीं होगा। सफारत खाने को ये बनाएंगे इलेक्टोरल पोलिंग स्टेशन बना देंगे, वहाँ जो कहेंगे या मोड़ लगा दे तो लगा दी जाएगी, और ये सारे वोट जो हैं ये असरअंदाज होंगे। आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हर पार्टी ये धांधली का जरिया बनेगा कि मर्जी के ठप्पे लगवा जाएंगे? ये हुकूमत का काम होगा। हुकूमत क्योंकि वहाँ कंट्रोल करती है, आपको पता ही उनकी कारकर्दगी कैसे या क्या नहीं है, और उसमें अपनी मर्ज़ी करेंगे। और इसमें यह भी है कि नामुमकिन है, क्योंकि जहाँ तक अंगूठे की उसका तल्लक है, शनाख्त का, वो वहाँ इम्पॉसिबल है। किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, और हर आदमी को जाली वोट बना के वो संदूक में डाल देंगे और इन्हें कहेंगे ये एक्सेस कर लो। आपका डस्का का इलेक्शन में क्या हुआ है, देखो ये बोरियां उधर से आएंगी और जिससे बड़े ख़तरनाक रिजल्ट निकलेंगे। जो कहा गया धुंध आ गई, और हाँ धुंध आ गई, यहाँ तो बड़ी, वहाँ तो बर्फबारी हो जाएगी, वहाँ तो बर्फबारी हो जाएगी। साहब के जो 90 लाख के करीब वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो वो इलेक्शन पे आप कह रहे हैं कि उसके नेगेटिव असरात होंगे? नेगेटिव मैं तो कहता हूँ कि वर्स्ट हालात होंगे। उसकी वजह ये है कि एक तो ये है कि कुछ मुल्कों में जमहूरियत नहीं है, जहाँ हमारे ज़्यादा दोस्त रहते हैं। हम यूरोप को छोड़ देते हैं, अमेरिका और कनाडा को छोड़ देते हैं, अब आ जाते हैं मिडल ईस्ट में। और सऊदी अरब ने तो भाई आपको गुजारिश करता चलूँ, आप तो वेल वर्स्ट हैं कि सऊदी अरब में डायरेक्टरी सफारती सतह पर इन्फॉर्म कर दिया है कि हमारा यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हम सिस्टम नहीं है वहाँ पर। यहाँ इंतखाबी से कैसे करेंगे? आपके यहाँ रहते हैं, बल्कि 90 लाख कहाँ हैं? 90 लाख से मीन्स ये है कि उसके मतलब उसमें से नाबालिग भी हैं, हर चीज़ है, फिर आते जाते रहते हैं। मेरे बेटा अपना कैनेडियन शहरी है, उसकी मिसेस भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान वोट पे खुश हैं वो कि आपको वोट देंगे? वोट उसका यहीं है, यहाँ आ गए हैं, तो कोई बात नहीं है ऐसी। मैं तो 6 महीने रह के आता हूँ, अमेरिका में भी वहाँ। लास्ट में हम जानना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल पार्टी क्या लाहेमल इख्तियार कर रही है, पार्टी इस पर एहतजाज करेगी, किस तरह से या अदालत में लेके जाएंगे इसको? जो हमारा तरीक़ाकार है वैसे तो हम ओबे करेंगे हर उनका हुक्म। मेरा ख्याल ये है कि 30 नवंबर को जो हमारी हो रही है कि यौम तसीस है, पेशावर में बहुत बड़ा जलसा आम होगा, वहाँ हम पॉलिसी अपनी डिक्लेयर करेंगे। लेकिन चूँकि हम दी अंडर द शेडो ऑफ पार्लियामेंट हैं और पार्लियामेंट में ये फ़ैसला हुआ है कि अपोजिशन मुत्तहद के फ़ैसला करेगी, पार्लियामेंटेरियन जो फ़ैसला करेंगे वो होगा। फैसले 2 होंगे, अगर एक होगा पार्लियामेंट के अंदर और एक होगा बाहर। अदालत का भी कहा जा रहा है कि अदालत के दरवाज़ा खटकाया। ये भी है, अदालत में बहुत सारे नलिटी इन दी आई ऑफ लॉ डिक्लेयर हुए हैं ऐसे फैसले, जिस तरह मार्शल लॉ रेगुलेशन तक डिक्लेयर हुए हैं, ये तो है। क्या अदालत इसको कर सकते? पार्लियामान तो सुप्रीम अदारा है। मेला फाइटी ग्राउंड पर इलीगल, सुप्रीम ऐसा नहीं है कि जो मर्जी करें। 1 मिनट में फैस नहीं होते 33 बिल,
33 बिल हजूर वाला, इसमें रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग कमेटी के पास जाता है, उसके बाद फिर उस पर डिबेट होती है, जिससे पब्लिक टू इन्फॉर्म दी पब्लिक एट लार्ज कि आप ये समझें कि इसमें क्या खूबी है, फिर अखबारों में उसके वो आते हैं। आपको तो आधे घंटे में पास कर लिया गया, और वो भी धोखे से किया गया। और जो कहते हैं स्पीकर जो है वो कोई आदमी नहीं चलना चाहिए, लेकिन हमने आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम की रिफाइन करा। नाज़रीन, जिस तरह आपने जाना कि किस हवाले से जो बिलिंग के हवाले से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल भी जाना, और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो में तासीस पर या फिर जो पार्लिमान में अपोजिशन इत्तेहाद है वो फैसला करेगी कि क्या लाएहमल इख्तियार करना है। अभी तक इस हवाले से जो अपोजिशन है वो इस सारे फैसलों पर नाखुश दिखाई दे रही है, और पब्लिक की तरफ से भी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैं उन पर इस हवाले से जो बात की जा रही है कि वो ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो पहले प्रैक्टिस रही है उसमें आवाम बैलेट के ज़रिए वोट कास्ट करती हैं, और मुसलसल ये सिलसिला जारी रहने के बाद अब नया सिस्टम लाया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस सिस्टम को आवाम किस तरह से कबूल करती है और अपोजिशन इस पर मज़ीद क्या लाहेमल इख्तियार करती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।